Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. So this is large language model project number 6 जिसमें हम देखेंगे long former transformer for long text classification. We will be creating or fine tuning long former from scratch using our own data set like movie reviews. But first of all, we have to understand why we need long former transformer model if we have already first generation architecture like BERT etc. So ये चीज़ समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि फर्स्ट जनरेशन ट्रांसफार्मर लाइक BERT उनका एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक ये था कि जो लॉन्ग सीक्वेंसेस थे वो उन पे फेल कर जाते हैं, यानी इनकी जो मैक्सिमम लेंथ थी कैरेक्टर्स की वो थी 512. सो लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 512 कैरेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस लेंथ of the first generation of transformer. That's why we need long former transformer to solve this problem. अब ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। Here you need to understand that what we mean by long documents. Okay, so let's say I have this entire document with 1000 characters. So I have an idea to gain more knowledge about transformers. Let's say from this part to this part we have only 512 characters. Let's imagine that, okay? And after this part to this part we have another 500 or 488 characters. So total we have 1000 characters. Now if you want to train BERT model on this text, तो यहाँ पे BERT फेल कर जाएगा। BERT यहाँ से लेके यानी फर्स्ट जनरेशन ट्रांसफार्मर आई हैव से लेकर ट्रांसफार्मर तक जितने भी कैरेक्टर्स हो गए वो उनको कैप्चर करेगा, ठीक है। जो भी उनकी मैकेनिज्म है उसके थ्रू वो इनको कैप्चर करेगा, लेकिन इसके आगे जितने भी कैरेक्टर्स है वो इनको इग्नोर करेगा, यानी यहाँ पे फेल कर जाएगा क्योंकि इनकी जो सीक्वेंस लेंथ है वो लिमिटेड है 512 कैरेक्टर तक। तो वो डॉक्यूमेंट्स जिनके अंदर आपके पास more than 512 characters है, it could be 1000 characters or it could be 4000 characters. In that case there are two models, reformer and long former. So reformer, long former are nothing but extension of first generation transformer, यानी ये BERT रोबोटा की ही एक्सटेंशन है जो जस्ट लॉन्ग सीक्वेंस और लॉन्ग डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। वी विल डिस्कस व्हाट इज लॉन्ग फॉर्मर, हाउ इट वर्क्स, and we will also see practical implementation from scratch on our own data set, right? So if you have a document like this one with 1000 characters, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट जनरेशन ट्रांसफार्मर थे वो फेल कर जाएगा। तो अगर आपने इनको क्लासीफाई करना है, इम्बेडिंग्स क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे you will lose 488 characters. You will just detect 512 characters or create embeddings or do whatever you want to do like classification or recommendation or whatever you do, but you will work only on 512 characters. You will lose all the other characters. So to solve this problem we have two model, reformer by Google जो कि आप सिर्फ 8 GB रैम पे इसको रन कर सकते हो, लेकिन इसका इशू ये था कि इसके प्री ट्रेन वेट्स नहीं थे। इसका जो ऑथर था इसने प्री ट्रेन वेट्स हगिंग फेस पे नहीं डाले थे। अभी मुझे नहीं पता अभी शायद हो या ना हो, लेकिन कुछ माह पहले तक इसके प्री ट्रेन वेट्स नहीं थे। तो इस वजह से एक और मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया एलन AI इंस्टीट्यूट ने, लॉन्ग फॉर्मर, जिसका आपको प्री ट्रेन 2 वर्जन मिलेंगे जो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। लेट मी शो दिस प्लेलिस्ट NLP ट्रांसफार्मर्स प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे हमने बिल्कुल क्रैश से पाइपलाइन से लेके एंड टू एंड फाइन ट्यूनिंग प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं उनको लाजमी देख लेना अबाउट लॉन्ग फॉर्मर ट्रांसफार्मर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इट्स कोड। Okay, long former, what it could do, we already understood it, that it's used for long documents. But instead of trying to look at every word in the whole at once, it uses combination of two types of attention. First
it looks at nearby words like reading a paragraph or page at a time. After that, it also looks at the bigger picture, trying to capture how different parts of the text connect to each other. So जो फर्स्ट जनरेशन के ट्रांसफार्मर थे लाइक बर्ड, वो हर वर्ड को एट अ टाइम देखता था, लेकिन जो लॉन्ग फार्मर है इसके पास दो टाइप्स ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म हैं. फर्स्टली ये हर नियर वर्ड को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है बाय रीडिंग पैराग्राफ और पेज एट अ टाइम, और उसके बाद उस इंटायर डॉक्यूमेंट के बिगर पिक्चर को कैप्चर करने की कोशिश करता है ताकि जो हमारे पास कैरेक्टर्स है वो लूज ना हो और एक बड़ा पिक्चर यहाँ पे डिटेक्ट हो सके. ओवरऑल मतलब ये है कि ये किसी भी कैरेक्टर को लूज नहीं होने देगा. ठीक है. ओके, सो द ऑथर्स pre-trained two variation of the long former model. One is base model जिसके पास 12 layers हैं, and one is large model with 30 layers. The long former is a variant of transformer architecture like BERT, I mean the first generation transformer, but it's specifically designed for handling long sequences of text efficiently. Both models like base model and large model of transformer were trained for 65K gradient updates with sequences of length 4096 with base size 64. So जो ऑथर था इसने दो मॉडल इसके बनाए हैं. एक छोटा सा मॉडल है बेस मॉडल जिसके पास 12 लेयर्स हैं, और एक लार्ज मॉडल है विद 30 लेयर्स. और इसने जब इसको ट्रेन किया था दोनों को, तो उसके लिए इसने डेटा यूज़ किया था 65 के ग्रेडियंट अपडेट्स के साथ, और जो सीक्वेंस लेंथ था एक डॉक्यूमेंट का वो था 4096 बेस साइज 64 के साथ. जब इसने प्री ट्रेन कंप्लीट किया तो इन मॉडल्स को इन्होंने टेस्ट किया डाउन स्ट्रीम टास्क पे, यानी फाइन ट्यून किया, जो कि आज हम करने वाले हैं. उसने क्या किया, क्वेश्चन आंसरिंग पे भी इसको चेक किया, कोरेफरेंस रेजोल्यूशन वाले प्रोजेक्ट पे भी इसको टेस्ट किया, एंड डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन पे भी इसको टेस्ट किया. टुडे इन दिस प्रोजेक्ट वी विल बी यूजिंग लॉन्ग फॉर्मर फॉर डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, एक्चुअली लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स. ओके, सो व्हेन टू यूज लॉन्ग फॉर्मर? Definitely when you have long documents, then you have to prefer long former instead of first generation. So tasks like document understanding, where you have to pre-process long documents, or articles where you want accurate analysis. क्वेश्चन आंसरिंग में भी आपको लॉन्ग फार्मर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप मॉडल को कॉन्टेक्स्ट देते हो, और एंड वी डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट लेंथ, इट कुड बी 4000 कैरेक्टर्स. सो इन दैट केस इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन आंसरिंग प्रॉब्लम देन डेफिनेटली यूज लॉन्ग फार्मर. समराइजेशन के केस में आपके पास लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनको आपने समराइज करने होते हैं, तो वहाँ पे भी कैरेक्टर्स मैटर करते हैं. सो इन दैट केस यू हैव टू यूज अगेन लॉन्ग फार्मर. सेमेंटिक सिमिलैरिटी लाइक रिकमेंडेशन systems, you have to again use long former. Now ये तो long former मैंने जितना डिटेल था वो आपको दे दिया. Now let's implement its code. So कोड मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन मैं क्या करता हूँ आसान और डिटेल के साथ लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर दिस नोटबुक विद यू इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन दिस नोटबुक इन योर गूगल कोलैब or in your Jupyter notebook, but keep in mind that you have to use GPU. Okay, so I recommend you that you must use Google Colab because there you will get a free GPU. फर्स्ट सेल के अंदर आपने कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने हैं लाइक डेटा सेट्स, देन यू हैव टू इंस्टॉल ट्रांसफार्मर्स, वॉन्ट बी, एक्सलरेट and transformers with torch. So you have to install all this library. Just uncomment and run the cell, it will be installed. But if you are using Google Colab, I think there you have to just install Accelerate. But if you are using your Jupyter notebook on your machine, then you have to install all these libraries. Okay. उसके बाद हमने कुछ फंक्शंस एंड क्लासेस एंड पाइपलाइंस इंपोर्ट किए हैं. पांडास जो कि ज़रूरत नहीं था बट मैंने इंपोर्ट किया. डेटा सेट जिसके थ्रू हम ऑनलाइन डेटा को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे. ट्रांसफार्मर से आपने लॉन्ग फार्मर टोकनाइजर फास्ट को इंपोर्ट करना है. लॉन्ग फार्मर फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ट्रेनर, उसके बाद ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, ए लॉन्ग फार्मर कन्फिग. सो लॉन्ग फार्मर कन्फिग क्लास आपको हेल्प करता है लॉन्ग फार्मर की कन्फिगुरेशन में, जो मैं थोड़ी देर बाद ही कहूँगा.
ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट, जब आप किसी भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसके लिए आपके पास आर्ग्यूमेंट चाहिए, लाइक इपोक, आउटपुट पाथ, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, वेट, अपडेट्स एंड डिकेज, ऑल दोस थिंग्स। तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए फाइन ट्यूनिंग के लिए ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, तो ये हमने इंपोर्ट किया है। ट्रेनर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जब आप फाइनली ट्रेन करते हो तो उसके लिए आपको ट्रेनर क्लास चाहिए। और जो कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल आप यूज़ करते हो उसके अपना टोकनाइजर और अपना उसका सीक्वेंस क्लासीफायर होता है, वो आपने इंपोर्ट करने होते हैं। सो लॉन्ग फार्मर का टोकनाइजर यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है और लॉन्ग फार्मर का जो सीक्वेंस क्लासिफिकेशन क्लास है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट किया है। उसके बाद टॉर्च से NNN जो कि न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने में हेल्प करता है, टॉर्च इंपोर्ट किया है। और टॉर्च के यूटिल्स के अंदर जाके डेटा से आपने डेटा सेट इंपोर्ट करना है और डेटा लोडर, जिसके थ्रू हम अपने डाटा को रेडी करेंगे। उसके बाद TQDM आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है जो आपको प्रोग्रेस बार डिस्प्ले करता है। वॉन्ड भी ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इंपोर्ट करना है। एंड OS ऑप्शनल है, ये अगर आप अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हो देन इम्पोर्टेंट। ओके, मैंने ये 1 by 1 एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग इनको रीड कर लेना, समझने में आसानी होगी। अच्छा, जब आप लॉन्ग फार्मर कन्फिग करना चाहते हो, यानी देखना चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन से पैरामीटर्स लेते हैं, तो आप ये कन्फिग क्लास यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है जो आपने समझना है, अटेंशन विंडो। सो बाय डिफ़ॉल्ट इट यूज़ 512। फॉर नाउ आई थिंक वी नीड टू स्किप दिस पार्ट बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट आगे आप इसको समझ पाओगे। आफ्टर दैट वी हैव डाउनलोडेड द डेटा सेट फ्रॉम हगिंग फेस IMDb, जो कि मूवी रिव्यूज़ का डेटा सेट है। उसके लिए आपने डेटा सेट्स के अंदर जाके लोड डेटा सेट, और यहाँ पे आपने नाम देना है एग्जैक्टली यही नाम, स्प्लिट बताना है ट्रेन एंड टेस्ट सेट्स, एंड कैशे डायरेक्टरी आपने बताना है, यहाँ पे कोई भी नाम दे दो, ये आपका अपना डायरेक्टरी होगा जो मैंने डेटा दिया है। उसके बाद ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा फाइनली आपके पास आ जाएंगे। सो अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ, ट्रेन डेटा के अंदर हमारे पास फीचर जो है वो 2 हैं, यानी कॉलम्स लाइक टेक्स्ट एंड लेबल। ओके, एंड द शेप, आई मीन द लेंथ ऑफ दिस इंटायर डेटा सेट इज 25,000। सो बेसिकली वी हैव 25,000 डॉक्यूमेंट्स जो कि टेक्स्ट कॉलम के अंदर हैं, और उनके लेबल्स जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो यू हैव 2 लेबल्स, 2 कैटेगरीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो बेसिकली इट इज़ अ सेंटिमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम। अगर आप टेक्स्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 5 रोज देखे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट 1। ओके, यहाँ से नीचे अगर आप देखो दिस इज़ द सेकेंड 1। सो फर्स्ट 5 टेक्स्ट मैंने यहाँ पे देखे। नाउ यू कैन सी दिस डॉक्यूमेंट्स आर क्वाइट लेंथी। ओके, दिस डॉक्यूमेंट्स आर क्वाइट लेंथी, इट कुड बी 1000 कैरेक्टर्स, दिस इज़ 1 डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे वी डोंट नो कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स होगी, तो इन दैट केस यू मस्ट यूज लॉन्ग फार्मर। ओके, नाउ लेट्स डाउनलोड द प्री ट्रेन लॉन्ग फार्मर मॉडल एंड इट्स टोकनाइजर। सबसे पहले मैंने जो लॉन्ग फार्मर मॉडल है वो डाउनलोड किया है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग फार्मर फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन पाइपलाइन या क्लास। इसके अंदर आपने फ्रॉम प्री ट्रेन फंक्शन को कॉल करना है। अब ये जो मॉडल है ये हगिंग फेस पे पड़ा है और ये उसका पाथ है LNI लॉन्ग फार्मर बेस 4096। ठीक है, ये लॉज मॉडल, वो जो बेस्ट मॉडल है वो नहीं है बल्कि लॉज मॉडल है जिसके अंदर 30 लेयर्स यूज़ किए हुए हैं। अब इसके अंदर आपने 2 पैरामीटर्स देने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट चेक पॉइंटिंग, इसको मैंने फॉल्स रखा है। अगर आप इसको ट्रू रखते हो तो आपके मॉडल की ट्रेनिंग फेज बहुत ही फास्ट होगी, बट फॉल्स मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे मेमोरी कंजम्पशन का एक इशू आता है, इस वजह से मैंने इसको फॉल्स रखा। अटेंशन विंडो मैंने रखा है 512। सो दिस अटेंशन विंडो पैरामीटर इज एक्चुअली विंडो साइज फॉर लॉन्ग फार्मर मॉडल। ये जो आप टोकन्स बनाते हो ना, लेट्स से दिस इज अ पैराग्राफ, ओके, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, ओके। नाउ इन दिस डॉक्यूमेंट वी हैव डिफरेंट token. This is first token, second token, third token, fourth up to so on. So इन tokens के बीच में रेंज कैलकुलेट करने के लिए विंडोज यूज करते हैं इंटरनली लॉन्ग फार्मर मॉडल, और ये होता है अटेंशन विंडो। बाय डिफॉल्ट ये 512 यूज करता है, हम इसी के साथ ही जाएंगे। उसके बाद मैंने टोकनाइजर यहाँ पे इंपोर्ट किया है, वही सेम पाथ है, लेकिन मैक्सिमम लेंथ मैंने 4024 दिया है कि आपने क्या करना है टोकनाइजेशन के दौरान, लाइक जब वो पैडिंग अप्लाई करता है, ट्रंकेशन अप्लाई करता है। आई हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन प्रीवियस वीडियो, ओके। इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस इन डिटेल
about NLP processing, I mean tokenization and pipeline, all those things in this video. Okay, so यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ 1024 दिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, कन्फिग कर दो अपने मॉडल को, तो वी हैव दिस। ओके, अटेंशन मॉडल जो है वो हमने लॉन्ग फार्मर, पाथ जो हमने दिया था वो ये है। यू विल सी इंटरनली अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स इट यूज। ओके, सो उसके बाद लेट्स टोकनाइज आवर डेटा। वी हैव टू प्रिपेयर आवर डेटा फॉर लॉन्ग फार्मर फॉर्मेट। मैंने कस्टम फंक्शन बनाया बाय द नेम ऑफ टोकनाइजेशन। ये एट अ टाइम एक टेक्स्ट लेता है, ठीक है। We have total 25,000 texts in our data, so one by one we have to pass this function 25 texts and each we have to tokenize each text। अब हर टेक्स्ट में इस फंक्शन के अंदर टोकनाइजर के अंदर पास करता हूँ, वो जाहिर सी बात है टेक्स्ट के अंदर है। पैडिंग जो होगा वो मैक्सिमम लेंथ होगा, यानी जो मैक्सिमम लेंथ है मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट का इंटायर डेटा के अंदर, आपने वहाँ तक पैडिंग करना है। पैडिंग मैंने बड़ी डिटेल से पिछले वीडियो में बताया है कि अगर हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस कम है, कुछ ज़्यादा हैं, तो अगर उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है तो हमने इक्वल करना होगा बाय एडिंग जीरो, एंड दैट जीरो इज नथिंग बट पैडिंग। ट्रंकेशन इज द अपोजिट ऑफ दिस बाय रिड्यूसिंग। ओके, एंड मैक्सिमम लेंथ आई हैव डिफाइंड 1024। आई वांट टू डू विद 1024 द मैक्सिमम लेंथ फॉर माई डॉक्यूमेंट्स। ओके, उसके बाद मैंने ये इंटायर फंक्शन अप्लाई किया है। बाय द वे आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस पैरामीटर्स राइट हियर, यू कैन एक्सप्लोर एंड चेक इट। ट्रेंड डेटा पे मैंने मैप किया है, टोकनाइजेशन फंक्शन को कॉल किया है, बैच को मैंने ट्रू रखा है क्योंकि मैं बैच मैनर में प्री प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, एंड बैच साइज इज अकॉर्डिंग टू माई डेटा फॉर ट्रेनिंग डेटा, एंड द सेम थिंग गोज विद टेस्ट डेटा। सो आफ्टर टोकनाइजेशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स फॉर फाइन ट्यूनिंग दिस मॉडल। अब ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट के अंदर आप अपने आउटपुट डायरेक्टरी देते हो, मैंने रिजल्ट दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो जिसके अंदर आप अपने ट्रेन मॉडल को सेव करोगे। ट्रेनिंग इपॉक्स मैंने दिए हैं कि आप कितनी बार इस मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं अपने इंटायर डेटा पर। मैंने अभी के लिए 1 दिया है, बट आप लोग 2 और 3 इपॉक्स देना क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है। इवन यूजिंग GPU इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स वाई आई यूज 1 इपॉक, but I recommend you to use minimum 3 epochs। okay, उसके बाद पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज मैंने 8 रखा है। ये अगेन ट्रेनिंग एग्जांपल्स को प्री प्रोसेस करता है साइमल्टेनियसली। GPU बैच साइज फॉर ट्रेनिंग, और ग्रेडियंट एक्यूमुलेशन स्टेप्स मैंने ऐड दिया है। ये नंबर ऑफ ग्रेडियंट्स एक्यूमुलेशन स्टेप्स होता है जो एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेडियंट्स को कंट्रोल करता है। एंड पर डिवाइस इवेल बैच साइज 16, ये बिल्कुल सेम इसी तरह है लेकिन इवेल्युएशन के लिए है। इवेल्युएशन स्ट्रेटजी मैंने इपोक रखा है, मींस ईच इपोक के बाद मैं अपने मॉडल को इवेल्युएट करना चाहता हूँ। इवन दो आई हैव ओनली 1 इपोक, इफ़ यू हैव 3 इपोक्स so it will evaluate after each epoch। Disable TQDM, इसको मैंने फास्ट रखा है क्यों, because I don't want the progress bar for training। Load best model at end, ये क्या करेगा, बेस्ट मॉडल को हर ट्रेनिंग के एंड पे लोड करेगा, ठीक है, यानी जो वेट्स अपडेट होते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के अंदर। उसके बाद वार्म स्टेप्स 200 मैंने रखे हैं। आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, आप लोग एक्सप्लोर कर लेना। वेट डी के 0.01 या आप पे हगिंग फेस वाले रिकमेंड करते हैं, और फिटिंग से बचने के लिए ये आपके वेट्स को डिके करता है, अपडेट करने के लिए बेस्ट सिलेक्शन करता है। लॉगिंग स्टेप 4 रखा है। FP16 को मैंने ट्रू रखा है। ये मिक्स्ड प्रिसीजन ट्रेनिंग होता है। अगर आपको मिक्स्ड प्रिसीजन ट्रेनिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो आप इसके बारे में सर्च कर लेना। सो एक्चुअली इट्स जस्ट स्पीड अप योर ट्रेनिंग फेज एंड रिड्यूस योर मेमोरी यूसेज, दैट्स द गोल ऑफ दिस पैरामीटर। लॉगिंग डायरेक्टली मैंने लॉग्स दिया है। डेटा लोडर नंबर वर्क्स 0 रखा है, यानी मुझे कोई नहीं चाहिए। सेव स्ट्रेटजी भी मैंने इपोक रखा है, एंड जो फाइनली मेरे मॉडल का नाम होगा वो मैंने ये नाम दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। सो दीज आर द पैरामीटर्स दैट वी यूज फॉर लॉन्ग फॉर्मर मॉडल ड्यूरिंग ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब ये सारे के सारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। जस्ट लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग। ओके, नाउ वी नीड टू ट्रेन द मॉडल। फॉर दैट यू हैव टू यूज ट्रेनर।
In trainer you have to pass model parameter, and this model parameter need the model you want to use, and we have stored the long former model into model variable, and it also use arguments. So you have to pass the training argument that you have set or created. उसके बाद training data set आपसे मांगता है and test data, and finally you have to what you have to call on this trainer, the train function. जब ये आप call करोगे, this is very important guys, note this part. On this step you will be paused. यहाँ पे आप रुक जाओगे. It will ask you that paste an API key from your profile and hit enter or press Ctrl C to quit. यहाँ पे आपने करना क्या है, just click on this link. Just click on this link. You don't need to do anything. Just click on that link. एक्चुअली जो won't be मॉड्यूल हमने यूज़ किया था, ये जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हो तो ये आपसे एक API की लेता है, क्योंकि इनके वेट्स एंड बायसेस वहाँ पे पड़े हैं. तो आपने जस्ट यहाँ पे लॉगिन करना है विद योर ईमेल. सो लेट मी लॉगिन. You don't need to do anything, just follow the same process that I am doing right here. Okay, exactly the same process, and just copy this. Okay, as you can see here, copied key to clip, and close this one and go here, and there you will see a search bar right here. Just press and enter, and after that you will see this part. Okay, what you have to do, you have to click on this. From there you have to copy the API. There you will see a search bar, press the API key and enter, and after that you will see this bar. Now this bar comes from the API that you have copied. Actually the won't be library or module use it. ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तकरीबन ये आपका 1 घंटा 20 मिनट लेगा. But if you are using 3 epochs, then it will use minimum 4 or 5 hours to train this model. Okay, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे epoch हमने 1 यूज़ किया था, सो 0 है. ट्रेनिंग लॉस इज दिस जो कि ज़्यादा है, वैलिडेशन लॉस इज दिस जो कि अगेन ज़्यादा है. बट 1 epoch पे ज़ाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा. बट इफ़ यू आर यूजिंग 3 or 5 epochs, it will reduce much this validation loss and training loss. उसके बाद मैंने ट्रेनर के अंदर जाके अपने मॉडल को इवेल किया है, तो अगेन यू कैन सी इवेल्युएशन लॉस इज दिस वन, और बाकी ये उनके स्टेप्स है, और आपने यहाँ पे epochs 1 यूज़ किया था. And after that you have to save this model. Now you can use this model in your production, or you can even upload this model on Hugging Face if you have fine-tuned this model for your data set or your problem. So basically इस प्रोजेक्ट का गोल ये था कि मैं आपको बता सकूँ कि आप किस तरह लॉन्ग फॉर्मर मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हो by using all these steps. Okay, exactly for each project you have to use these steps, because if let's say your client gives a data set that has the documents are lengthy and he wants you best model, so definitely you will go with long former. So if you have this code, then you can easily use this code. So अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो. और हाँ, आप लोग चैनल में बहुत सारे वीडियोस को देखते हो, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो आई रिक्वेस्ट यू दैट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज इन फ्यूचर वी आर अपलोडिंग अ लॉट ऑफ videos related to GenAI and large language models. So thank you so much for watching this video, and see you in the next project.